Well, hello guys. Today the first video lecture on helioscope, and in this video lecture we will learn in detail how to design any system size using helioscope. In this video lecture we will specifically design a project capacity of 1 megawatt system size using helioscope. So all you need is to first get the location coordinates from the client side, and this one is the Google Earth Pro software, and here I will put the location coordinates. Actually my video lecture will cover both English and Urdu languages. So in comment section you can easily guide me in which language medium you can convenient with me. So here I will place a location coordinates. यहाँ मैंने location coordinates अपनी साइट के डाल दिए, और ये जो उनसे है एक्चुअल साइट को फाइंड कर रहे हैं. So this one is the exact site of client. So यहाँ हम देख सकते हैं, here we can see the inverted beams, and we know that inverted beams are of two types: north south inverted beam like this, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. लाइक आप देख सकते हैं कि इस कंपस में this one is the north, this one is the south, and this one is the east, and this one is the west. And for your kind information, we know Earth is divided up into four hemispheres: northern hemisphere, eastern, western, and southern hemisphere. So कोई भी लोकेशन अगर आपकी है, कोई भी पिन लोकेशन है, that provides information about longitude and latitude. And now what is longitude and latitude? Longitudes are north-south lines, and latitude are east-west lines. So जहाँ पे वो lines कट कर रही थी है, वो एक पिन पॉइंट लोकेशन होती है, like this one. So this one is the latitude and longitude. So हम किसी भी पॉइंट पे अगर अर्थ में स्टैंड करते हैं तो हम कोई से भी दो हेमिस्फीयर्स में लाई कर रहे थे, either northeast or northwest, or southeast or southwest. Well, again come to the point. So this one is the side, and this one is a east-west inverted beam. This inverted beam originates from east and goes to west. So ये जो inverted beam है ये east west orientation में है, और ये जो inverted beam है, the direction of this inverted beam or the inverted beam was oriented in north south. So this one is a north and this one is a south, and here we can mount P1 portrait panels. मतलब panels को हम portrait alignment में भी इस पे लगा सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, P2 में भी कर सकते हैं, P3 में भी कर सकते हैं, डिपेंड कि इन्वर्टेड बीम टू इन्वर्टेड बीम कितना डिस्टेंस है. वेल, सो दिस वन इज अ हेलियोस्कोप, एंड here we can write the project. So यहाँ हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है. लेट्स सपोज टेक्सटाइल मिल्स है कोई भी, इसको नाम दे सकते हैं लाइक टेक्सटाइल मिल्स, and this one is the location coordinates of the site, and this one is the customer name. Suppose customer name is XYZ, and description में इधर मैंने लिखा है कि हम 1 मेगावाट सिस्टम साइज पे भी अभी डिजाइन बनाएंगे और मैक्सिमम पे भी जा सकते हैं. डिपेंड करता है कि क्लाइंट साइड पे अगर तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 1 मेगावाट की थी तो 1 मेगावाट पे प्रोजेक्ट बना देंगे, लेकिन अगर वो ऑल रूफ्स पे जो उसकी प्रोवाइडेड सरफेसिस है उस पर लगाना, चाहे वो ग्राउंड माउंट है, चाहे वो आरसीसी है, चाहे वो पीबी कोरुगेटेड शेड है, प्रीकास्ट है, प्रीफैब्रिकेटेड है, तो उन सब सरफेसिस पे हमने पैनल्स को माउंट करना है. ओके, सो यहाँ हम प्रोफाइल को डिफाइन कर देते हैं कि ये मेरी डिफॉल्ट कमर्शियल है या इंटरनेशनल है, डिफॉल्ट रेजिडेंशियल है या इंटरनेशनल है, या ग्राउंड माउंट.
ओके, सो हम नई साइट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इधर डिजाइन 3 को नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज 1 मेगावाट पे काम करना है, तो 1 मेगावाट प्रोजेक्ट कैपेसिटी। इसको मैं क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी साइट बेसिकली ओपन। सो दिस वन इज द साइट ऑन विच वी विल माउंट आवर पीवी स्ट्रक्चर्स। सो ये क्लाइंट से मुझे, ये मैंने डिज़ाइन मंगवाया तो क्लाइंट ने मुझे ये कहा कि जी ये आपने इस, ये मेरी सारी रूफ्स हैं, इनको आप यूज़ करें और मुझे 1 मेगावाट प्रोजेक्ट साइज चाहिए। तो अब हमने इन रूफ्स को एफिशिएंटली यूज़ करना है। और यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। हमने यूज़ इस तरीके से करना है कि हमारी मिनिमम डीसी केबल लगे। अब सपोज मैं अगर पैनल्स कुछ इधर लगा रहा हूँ, कुछ इस एरिया पे लगा रहा हूँ, कुछ इस एरिया पे लगा रहा हूँ, तो ये यूजलेस अप्रोच है। उसकी वजह ये कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी, क्योंकि जो हमने डीसी केबल्स को केबल ट्रे के थ्रू लेके आना है, इसकी जो टर्मिनेशन है वो करनी है। ये क्लाइंट की दो टर्मिनेशन है, तो हम आइदर इस पे भी टर्मिनेट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, इस पे भी कर सकते हैं, या इन दोनों पे भी कर सकते हैं, डिपेंड कि अगर हमने मैक्सिमम प्रोजेक्ट कैपेसिटी पे जाना है। और ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो एल टी रूम है, एल टी मीन्स जो लो टेंशन मीन्स के लो वोल्टेज को हम डील कर रहे हैं। तो जो हमारा एल वी पैनल है जिस रूम में पड़ा हुआ है, या जो भी इन्वर्टर रूम डेजिग्नेटेड क्लाइंट ने कहा है अपनी एल टी रूम में, क्या है कि उसमें इतनी स्पेस है कि हम सारे इन्वर्टर्स उसमें माउंट कर सकें, क्योंकि इन्वर्टर टू इन्वर्टर भी एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिंग देखी जाएगी और इन्वर्टर टू वॉल की स्पेसिंग देखी जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद, ओके, सो अब क्लाइंट ने ये हमें 1 मेगावाट डिफाइन कर दिया कि मुझे 1 मेगावाट सिस्टम साइज चाहिए, और ये उसका एल टी रूम है। ठीक है, एक एल टी इधर पड़ी हुई है, एक एल टी इधर पड़ी है। तो मैं इस रूफ को सबसे पहले यूज करूंगा, इस रूफ को भी कर सकता हूँ। तो चूंकि ये मैं इस रूफ को स्टार्ट से शुरू करूंगा, तो इस एलटी में मैं अपनी डीसी को टर्मिनेट करूंगा, मतलब जो डीसी केबल ट्रे है उसको इस रूट से लेकर आऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो ये जो आइकॉन है न्यू, ये बेसिकली फील्ड सेगमेंट क्रिएट करता है, जिसपे हमने, जिसे हम कहते हैं पीवी माउंटिंग सरफेस। सो फील्ड सेगमेंट डिफाइंस द पीवी माउंटिंग सरफेस ऑन विच वी कैन माउंट आवर पीवी पैनल्स और एनी कस्टमाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर। सो क्लिक ऑन इट एंड आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी ग्रीन पॉइंट इज इंडिकेटिंग। सो अब हम इसको होवर करेंगे और इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। एंड टू एंड जो है वो मेरी कोशिश रहती है कि वो हम ना ही जाए, तो सेफ साइड पे रहते हुए हम इसको यहाँ पे क्लिक करें। ये मैंने क्लिक कर दिया। ओके, सो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये यूनिट्स आपको मीटर्स में शो हो रहे हैं, इसको हम फीट्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, माय अकाउंट, अकाउंट में जाके आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। प्रेफरेंसेस का एक टैब होता है, जस्ट उस पर आप यूनिट को रिप्लेस कर, एक मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसी तरह एक क्लिक कर। अच्छा, शिफ्ट दबा के अगर मैं करता हूँ ड्रैग इस ग्रीन को, तो आप देख लेंगे बिल्कुल 90 डिग्री जो है सब, या किसी 45 डिग्री पे वो आएगा। अदरवाइज मैं रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। तो मैं शिफ्ट दबा के, ताकि जो प्रॉपर अलाइनमेंट से वो मेंटेन, इस पे क्लिक किया। इसी तरह यहाँ एक सरफेस है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस सरफेस को यूज नहीं करूँगा। इसी तरह हम इस पे क्लिक करेंगे, इन्वर्टेड बीम पे इस पे करेंगे। उसके बाद हम इधर क्लिक करेंगे, then we click here, then click here,
this, then click this, this, this. अब हमने इस पे शिफ्ट दबा के भी देखना है, वैसे भी होवर करके देखना है, तो जहाँ पे हमें लगेगा कि बिल्कुल 90 डिग्री सरफेसिस बन रही है, तो वहाँ पे अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरी सरफेस क्लोज हो जाएगी और पैनल्स जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले पैनल्स डिफाइन करने हैं। पैनल्स कौन से बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये डिटेल सेगमेंट आ जाएगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन फील्ड सेगमेंट बन, तो ये मेरी फील्ड सेगमेंट बेसिकली वो माउंटिंग सरफेस होती है जहाँ पे हम पैनल लगाएंगे। ठीक, अच्छा, ये शोइंग अरे को मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे पैनल्स इनविजिबल हो जाएंगे। दोबारा हाइडिंग अरे पे क्लिक करूंगा तो ये पैनल्स, ये स्टेटस शो कर रहा है इस वक्त मुझे अरेज जितनी भी है शो हो रही है। अच्छा, इसका दूसरा होता है शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। इसका क्या कंट्रोल किया, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। इसको जब हम क्लिक नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं तो हम अपने पैनल्स जो हैं वो देख, मतलब पैनल्स को इनविजिबल करके इसकी डिटेलिंग को देख सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पैनल्स पोस्ट चाहिए, सपोज मैं यूज करता हूँ हॉसन 710 वाट का, कोई भी रैंडम मैंने यूज कर लिया। टीयर 1 में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज लॉन्जी, जिनको, जे, कैनेडियन, ट्रीना, ओनो। ओके, सो यहाँ हम हाइट डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग है, फिक्स टिल्ट रैक का मतलब है कि हम उसी बिल्डिंग के ऊपर कोई कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे। मतलब स्ट्रक्चर की कस्टमाइजेशन है लेकिन बिल्डिंग की कोई पिच नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग में कोई इंक्लिनेशन नहीं है। अगर वो इंक्लिनेशन होती जैसा शेड बेस्ड स्ट्रक्चर से, तो फ्लश माउंट ट्रैकिंग को हम क्लिक करते तो आप देखें कि एंगल बन जाता है, ये एंगल है। इस एंगल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं इस एंगल को 15 डिग्री कर सकता हूँ, सपोज मैं 5 डिग्री कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मेरी जो फ्लश माउंट है उस पे क्या एंगल है। ठीक है, क्योंकि हमें पैनल को तो उसके ऊपर ही प्लेस करने थे। तो अब जो कि फिक्स टिल्ट रैकिंग है तो मेरा जो रैक हो, इसी तरह ईस्ट वेस्ट रैकिंग जो सी है उसमें पैनल्स दोनों तरफ हो जाते हैं। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस में हम देखें तो ये देखें, ये पैनल्स टूवर्ड्स, ये पॉइंट एक जो सा ये मेरा नॉर्थ है। रिसेंट व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो एक दफ़ा जूम आउट कर देगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपने देखा कि ये ईस्ट वेस्ट रैकिंग है। ठीक है, ओके, सो कार्डबोर्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं ये जिनके ये होते हैं शेड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। कार्डबोर्ड कस्टमाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिनके नीचे जो कार्स है वो स्टैंड करती हैं। तो हमारा फिक्स्ड रैकिंग है, हमने इस पर कर दिया और रिसेंट व्यू पे जाके क्लिक कर दिया। ओके, सो अब ये जो पैनल्स है वो 180 डिग्री है। अच्छा, अब ये जिससे मैंने ड्रैग गलती से कर दिया था और ये आगे शिफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मैकेनिकल, मतलब यहाँ पे जाके ये एक आपको आइकॉन नजर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्रोसेस अंडू हो जाएगा। ठीक, दोबारा उसी जगह पे आ गया। अगर मैंने रीड्यू करना है तो दोबारा इस पे क्लिक करूंगा, अगेन उसी स्टेप पे आ जाएंगे। इस तरह के आप मल्टीपल्स अंडू मीन्स कंट्रोल प्लस सी एंड रीडू कंट्रोल प्लस वाई कर सकते हैं। सो इस पे अगेन क्लिक करेंगे। ओके, सो ये 180 डिग्री मीन्स के ट्रू साउथ है, ये एग्जैक्ट साउथ की तरफ है। ये जो पैनल है ये एग्जैक्ट किसकी तरफ है, साउथ की तरफ। ये नॉर्थ है, नॉर्थ ये वाली डायरेक्शन है, और साउथ इसके 180 डिग्री आउट ऑफ फेस डायरेक्शन है। लेकिन हम जब भी
प्रोजेक्ट कैपेसिटी मैक्सिमम, जब हम मेगावाट्स पे स्केलिंग करते हैं तो हमारी प्रेफर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो बिल्डिंग एजीमथ होती है, अनटिल अनलेस कि वो साउथ से बहुत ज़्यादा डेविएट करते हैं तो वो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डेविएशन आए तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, अभी इस वक्त एंगल 180 डिग्री है, ये ट्रू साउथ है, मैंने इसको बिल्डिंग ऐसी मत करना है, यानी कि बिल्डिंग के अलाइन करना है, जिससे मेरे ये बीम्स है इसी की अलाइनमेंट में अपने पैनल्स को ओरिएंट करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ये देखें सेट एजीमथ टू वन 218.2, इस पर क्लिक करूंगा तो पैनल्स जो है वो बिल्डिंग अलाइंड हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एजीमथ है ये कितना है, ये भी मैंने जो एजीमथ पे किया ही है 218.2, तो मैं देखता हूँ 180 डिग्री जो है उससे कितना डेविएट किया, साउथ से कितने पैनल्स डेविएट है। वेल सो 218 माइनस 180, इस पर मैं क्लिक करूंगा 38.2, सो 38.2 ये डेविएट है, और पैनल्स जो से वो इस वक्त नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है, जो पैनल्स है वो किस रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, मीन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर का जो कॉमन रीजन पैनल उसमें लाइक का है। एक क्वेश्चन मेरे जेहन में ये भी आता है कि मैं इस डायरेक्शन में तो भी तो कर सकता हूँ, अगर मुझे बिल्डिंग अलाइन भी करने हैं तो बिल्डिंग अलाइनमेंट की भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन इस केस में जो मेरा एजीमुथ है वो 127.2 है, जो मेरा एजीमुथ है वो 127.2 है, इसको मैं 180 डिग्री से माइनस करूंगा तो यहाँ अगर आएगा नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर दो, ये 52.8 है, तो ये 38.2 था 52, तो इस पे ज्यादा हमारे कंसिडरेबल लॉसेस होंगे, ठीक है, और इसमें जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो भी खराब है, परफॉर्मेंस लॉस होगा इस पे ज्यादा। तो यही वजह थी कि हमने इस इन बीम्स की अलाइनमेंट में अपने पैनल्स को माउंट किया हुआ था। इस पे मैं क्लिक करूंगा दोबारा ये मेरा प्रोसेस अंडू हो जाएगा, ठीक, ओके। अब ये जो पैनल्स है ये लैंडस्केप में है, ये हमारी अप्रोच नहीं होती, हम यूजुअली पोर्ट्रेट कर रहे थे इस पे, लैंडस्केप में भी कर सकते हैं लेकिन 90 to 95% हम पोर्ट्रेट अलाइनमेंट में चल रहे थे। ओके, सो इस पे सबसे पहले ये देखें डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, डिफॉल्ट उसने ओरिएंटेशन लैंडस्केप की है, मीन्स के हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा तो ये मेरी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आ गई, ठीक है, ये मेरी सारी पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकली माउंट आ गया। ओके, सो उसके बाद लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं 2x1 पे करूँ, मीन्स के P2 में करूँ, जिसमें यहाँ से 2x1 करूँगा तो ये मेरा P1 में आ जाएगा, ये देखेंगे P2 है सॉरी, सो फ्रेम साइजिंग है 2 1, इसका मतलब है कि 2 रोज एंड 1 कॉलम, कोई मैट्रिसेस M क्रॉस N, रोज इनटू कॉलम्स। अच्छा, अब मैं इसको वापस कर दूंगा अपने, सबसे पहले जो बिल्डिंग थी वो फिक्स रैंकिंग की थी, ठीक है, और एंगल जो सा वो मैंने डिफाइन किया हुआ है। नॉर्मली हम पोर्ट्रेट में 10 डिग्रीज कंसीडर करते हैं, हम 15 डिग्रीज पे भी जा सकते हैं, और लैंडस्केप में हम 15 डिग्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जो जिन्होंने जो डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनसे फिर हमें इल्म होता है कि जी वो 15 डिग्रीज पे या 10 डिग्रीज पे, या फिर क्लाइंट कहता है कि मुझे P2 स्ट्रक्चर या P1 10 डिग्रीज में नहीं चाहिए, मुझे 15 डिग्रीज में चाहिए, ऑप्टिमम एंगल चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम एंगल मतलब कि हम मैक्सिमम एनर्जी गेट कर सकें। ये जो मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो PV6 पे होगा, जिसमें हम डिटेल लॉसेस को कंसीडर करेंगे, और उधर मैं बताऊंगा आपको कि ऑप्टिमम एंगल कैसे PV6 से 1 क्लिक पे बता देता है कि इस पे हम मैक्सिमम एनर्जी को गेट कर सकते हैं।
और अगर हम 10 to 15 डिग्रीज पे रखते हैं तब हम कितना एनर्जी लॉस कर रहे हैं ये भी वन क्लिक पे जस्ट पीवी सिस्टम में पता नहीं चलता। और भी डिटेल लॉसेस हैं लाइक थर्मल पैरामीटर, ओमिक लॉसेस, लाइक अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रल करेक्शन, एजिंग। तो ये भी टाइम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। आईएम लॉसेस क्या होते हैं, थर्ड मुझे मीन्स के सॉइलिंग लॉसेस क्या होते हैं, इंसिडेंट्स एंगल मॉडिफाइड लॉसेस क्या होते हैं, ये चीज़ें हम जल्दी ही 1 वीक, विद इन 1 वीक में ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो हमने डिज़ाइन को A to Z अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को डिटेल से कर रहा हूँ, तो अदरवाइज मैं जस्ट प्रोजेक्ट करता और ये पेंसिल लग जानी थी। लेकिन एक एक चीज़ इसलिए बताई जा रही है, चीज़ों को डिटेल से समझें ताकि प्रॉपर जो डिज़ाइन सेंस है वो बन सके। और उसके बाद ऑटोकैड जो सा है 2 to 3 वीक्स में मैं डिटेल ऑटोकैड भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स, पीवी लेआउट, स्ट्रिंग लेआउट, वाटर कलेक्शन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, फेंस लेआउट, गार्ड रेल लेआउट, ACDC अर्थिंग लेआउट, लाइटनिंग अरेस्टर लेआउट, ये सारे लेआउट्स हम स्टडी करेंगे किसी। और पीवी सोल, पीवी सिक्स, हेलियोस्कोप, ऑटोकैड, इन सब पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डेवलप करेंगे, लेकिन विद टाइम करेंगे, आपकी सपोर्ट चाहिए। ओके सो P2, अच्छा अब मैं P2 भी कर सकता हूँ, P1 भी कर सकता हूँ, P3 भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं इन्वर्टेड बीम टू इन्वर्टेड बीम डिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा। मैं इन्वर्टेड बीम के 90 डिग्री अपनी अरे को चला रहा हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड बीम थे मेरे नॉर्थ टू साउथ थे, लेकिन जो मैं पैनल्स लगा रहा हूँ इस पे वो 90 डिग्री में लगा रहा हूँ, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं P1 लगाऊँ, P2 लगाऊँ या P3 लगाऊँ। अच्छा, अब उस पे भी हम करेंगे। ये जो से ये इन्वर्टेड बीम्स है ये ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ इन्वर्टेड बीम्स है, ये ईस्ट वेस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट पे हम देखते हैं कि इस बीम टू इस बीम कितना डिस्टेंस है, ताकि स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए भी तो हमने स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देनी है जो मैक्सिमम टिल्ट पे होगी, तो उसको भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। वेल सो अच्छा, एक चीज़ तो मुझे डिसाइड होगी कि मैं P1 भी लगा सकता हूँ, P2 और P3 भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त इन्वर्टेड बीम टू इन्वर्टेड बीम मैटर नहीं कर रहा। सेकंड, अब इसमें मैं अब मुझे ये चीज़ इसको अंडरस्टैंड करनी है कि अगर मैं P1 लगाता हूँ ना, तो हो सकता है तो मुझे फिर वॉकवेज या जोन सी है वो देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि वो वॉकवेज ग्रिड FRP भी हो सकती है, MS चेकर शीट भी हो सकती है। ग्रिड FRP मीन्स फाइबर ग्लास रेनफोर्स, FRP फाइबर ग्लास रेनफोर्स, P से प्लास्टिक। तो ये नॉर्मल ग्रिड FRP वॉकवे चल रही होती है या MS चेकर शीट चल रही थी, तो मुझे पैनल्स को क्लीनिंग भी प्रोवाइड करनी है, O&M एग्रीमेंट भी हमने करना है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस। तो फिर इसलिए मुझे P1 दे देता हूँ ताकि मुझे वॉकवेज ना देनी पड़े। अगर मैं P2 देता हूँ तो मुझे ये जो अपर वाला है, ये जो P2 की जो फर्स्ट रो है, इसके लिए मुझे फिर वॉकवे प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि पैनल को यहाँ से क्लीनिंग एक्सेस देनी है। क्योंकि ये पैनल जो है वो 2384 mm है और 1303 mm इस तरह, और 30 mm इसकी थिकनेस है। ये हुआसन 710 वाट का पैनल है। अगर आप लॉन्जी जिनको J550 यूज कर रहे हो तो वो 2274 mm, 1134 mm उसकी विड्थ है और 35 mm उसकी थिकनेस है। ओके सो मैं इसको P1 दो करूंगा तो 1 क्रॉस 1, तो ये सारे P1 हो गए। अब इसमें जो इंट्रा स्पेसिंग है वो भी मुझे देखनी पड़ेगी कि पैनल्स पे शेडो ना आए, अदरवाइज जो शेडो लॉसेस है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, टाइम ऑफ द डे इस पे क्लिक करूँगा, इधर मैं टाइम भी फाइंड करूँगा। सो जो दिसंबर 22 है तब दिन जो सा होता है वो छोटा होता है। द डे इज शॉर्ट ऑन December 22, मीन्स कि जो सन होराइजन है वो सबसे कम होता है।
ये भी पीवी, जिसमें हम जो चार्ट है वो देख सकते हैं कि जो गॉसियन कर्व है, बेल शेप कर्व है, उसमें दिखाया जाता है कि जो जून 22 है उसमें दिन सन होराइजन सबसे ज्यादा होता है, तो वो लॉन्गेस्ट डे है। जो सर्दियों में फिर हम जो शेडो एनालिसिस है वो बेंचमार्क बनाते हैं दिसंबर 22 में। उसकी वजह ये थी कि शेडो ज्यादा होते हैं उस वक्त दिसंबर 22 में, क्योंकि दिन छोटा होता है, सूरज जो सा होता है वो उसकी हाइट नीचे होती है, मीन्स की जो सन होराइजन है वो बिलो होता है रिलेटिव टू जून 22। तो फिर हम इसी को कंसीडर करते हैं। तो अब इसमें जो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है वो 9 से 3 बजे तक होती है। अगर इंडस्ट्रियल है तो आप 10 से 2 बजे तक भी कर सकते हैं। तो इस बेस पे जो हम शेडो एनालिसिस करते हैं वो हमारा बेस्ट होता है। ऑल ओवर द ईयर जो भी लॉसेस होते हैं वो उसको हम कंसीडर कर रहे थे। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये भी होगा। अच्छा, सेटबैक, सेटबैक का मतलब है ये जो ऑरेंज कलर की अब आप लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस बाउंड्री से आप 1.2 फीट वाली जो जोन क्रिएट हुई है इस पे पैनल्स माउंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये सेटबैक डिफरेंट जो सीटी है एप्लीकेशन उसमें काम देता है। अभी मैं इसको जीरो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना पैनल रखना ही इन्वर्टेड बीम पे है जो अभी भी नहीं है। तो मैं अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर्ड अलाइन करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये जितने भी पैनल्स हैं वो इन्वर्टेड बीम पे प्लेस है। यहाँ से भी आप देखें कि ये इन्वर्टेड बीम, जिस तरह ये नॉर्थ टू साउथ इन्वर्टेड बीम चल रहा है, इसी तरह ये नॉर्थ टू साउथ इन्वर्टेड बीम चल रहा है। इसको मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो अरे है वो हाइड हो जाएगी, तो जो माउंटिंग सरफेस क्लियरली नजर आएगी। वेल, सो तो हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। अब एंगल इसमें हम नॉर्मली 10 डिग्री सकते हैं, तो हमने 10 डिग्री कर लिया एंगल। जो मेरा टिल्ट एंगल है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है या बीम से कितना एंगल बना रहा है, 10 डिग्री बना रहा है। ओके, इसमें हमने सारी चीज़ें कंसीडर कर ली। ये पैनल्स यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं, और हाइट जो सी है ये डिफाइन कर देते हैं। अब इसमें हाइट की ऐसे जरूरत नहीं है, अगर तो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों जो कि शेडो कास्ट करते हों तो तब हम हाइट भी कंसीडर कर लेते हैं, या बिल्डिंग को भी हाइट दे लेते हैं। जी लेट्स सपोज अगर मैंने ये बिल्डिंग है, इसको मैंने हाइट देनी है कि मेरी सपोज 5 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स 3.2 फीट, 3.28 फीट। तो suppose मैं 5 मीटर देता हूँ, तो अब ये देखेंगे मेरी ग्राउंड से 5 मीटर अबव है, ये बिल्डिंग की हाइट आ गई। लेकिन इसमें पता क्या डिफिकल्टी आती है, जब हम पैनल्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, तब उतने डिटेल से नहीं देख सकते जितना जीरो पे हम रख के देख सकते हैं, डिपेंड करता है व्यू पे। ओके, सो इधर अलाइनमेंट दोबारा डिफाइन कर देते हैं। बल्कि इसको सेंटर्ड अलाइनमेंट रखते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ मूव कर देते हैं। ये अलाइनमेंट बस राशन थोड़ा सा इस तरफ करते हैं क्योंकि ये बीम के ऊपर पैनल में आ रहा है। ठीक है, सो ये चीज अब हमने डिटेल से अंडरस्टैंड। ओके, अभी तक हमारा जो सिस्टम साइज हुआ है इस फील्ड में वो हुआ है टोटल 1089 हमारे पास पीवी मॉड्यूल्स हैं।
and we know each module has module voltage 710 watt. So 1089 into 710 watt, and that is 773.19.